Assalamu alaikum friends. Today we are starting our first lecture on ancient history with regards to JKAS prelims 2022. We'll be starting from the basic concepts, what historical period is and what we need to study in different historical periods. Then further going further, we'll be discussing about in ancient history. We'll be discussing about Indus Valley civilization, its features, and where are the topics where the questions will be expected, and how we have to deal without having to study too much. How we can deal how we can deal with those questions in actual examination. This is very important for us to understand. If we are able to understand it, what are the topics, क्या है वो टॉपिक्स, कहाँ से क्वेश्चन पिक हो सकता है और कैसे हो सकता है और हम क्या मिस कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, why it became necessary for me to highlight these issues. Otherwise, at graduate level, anybody can prepare himself or herself. It's not necessary to go for coaching, etc. But it's just a mentorship program we have started here to only to cover those loopholes जब हम वो सारा सब कुछ पढ़ते हैं और छोटी छोटी चीजें हमें मिस हो जाती है. If we start from the history, based on the timeline, we divide it into prehistory, proto-history, and history itself. Now, this three division classification, we'll have to understand each and every bit of it. What does it mean, what does this mean, and what does history mean? Prehistory covers almost 99% of our history. Means 99% of history in the world or life is concerned that is dealt in prehistory. It is that section of the where we do not have any literary evidence available. No literary evidence available. No literary evidence available. Then how do we know about this history? Mostly it's through archaeological facts. I'll be using the things mostly and commonly. You'll have to understand yourself that my emphasis is on where my emphasis lies. When I say mostly, it's a general viewpoint I am carrying forward, not a particular viewpoint. No literary evidences, but we develop it through archaeological evidences. We learn this historical period through archaeology. Similarly, we have proto-history. In proto-history, there are literary evidences available, but we are unable to decipher those. Means, despite of literary evidences are available. But unable to decipher. This is through what Indian historical context we say we are unable to decipher that script or that literary evidence. For European history, the definition is somewhat different, and you don't need to remember because we'll have to focus on particular aspects in this lecture series. We will not go in a detail because we don't need any detail regarding this. This is what options you can cover. Those who are having history as an optional, they need to know some few points, more points in this classification. History, both things are available. Both literary, archaeological, extra. Literary, archaeological, extra. Any evidence available. This literary evidence was available here also. But in this historical period, we are able to decipher. Means हमारे पास deciphered means हमें उस जो भी literary evidence available है, हमने उसको जाना है, हमने decipher किया है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे पास हमने उसको
सीखा उनसे, हमने डिफरेंट कंटेक्स्ट पढ़े, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पढ़े, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स पढ़े, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पढ़े और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से. This is general evidence how we start history. Now, where in JKPSC or UPSC the questions start, where we can think that questions can be asked. There can be questions asked from prehistory as well, because this is very important part of our history. In prehistory, you will have mostly read, as of now, that we have stone culture. Or stone, where we have studied three cultures so far: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleolithic टाइमलाइन पे जब इसका टाइमलाइन हम देखते हैं, ये 2 million years ago to 12,000 years ago तक की टाइमलाइन, बहुत सारा टाइमलाइन, बहुत सारा टाइम पीरियड कवर करता है, बहुत टाइम, लाखों साल, हजारों साल, करोड़ों साल इस टाइम पे, और कितनी हिस्ट्री इसमें छुपी हुई होगी इस पीरियड. और मीजोलिथिक जब इसका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं तो वो है 12,000 years ago से 10,000 years, और नियोलिथिक 10,000 years ago के बाद जो फिर उसके बाद शुरू होगा फिर चारकोलिथिक पीरियड. तो उसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे आयरन एज. हम चूंकि हमें थीम वाइज पढ़ना है तो वी डोंट नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. हमने सिर्फ क्वेश्चंस कहाँ से पिक कर सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, वी कैन नॉट गो इन डिटेल फॉर इन ईच एंड एवरी टॉपिक. हमें देखना है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पिक कर सकता है, उसके जहन में क्या आ सकता है जहाँ वो क्वेश्चन पिक कर सकता है. पैलियोलिथिक में आपने ये स्टोन एज, जब हम पहले ही बोला मैंने कि स्टोन एज, तो इसमें टूल्स, क्योंकि हंटिंग एंड गैदरिंग का टाइमलाइन था, उस वही दौर था. हंटिंग एंड गैदरिंग फ्रॉम वाज मेनली प्रैक्टिस, दे वर द टू चीप प्रैक्टिसेस, हंटिंग एंड गैदरिंग. तो मींस टूल्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होना लाजमी था. कौन से टूल्स इस पीरियड में इस्तेमाल किए जा सकते थे? स्टोन टूल्स. क्या स्टोन टूल्स बड़े रिफाइंड थे इस पीरियड में? नो. इसमें कोर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था. सिंपल पेबल्स का, हैंड एक्सेस का, चॉपर्स का, सिंपल कोर टूल्स. स्टोन टूल्स मगर कोर टूल्स, पॉलिशिड वॉलिशिड कुछ भी नहीं, कोर टूल्स. कोर टूल्स में जब हम कहते हैं तो उसमें सीधे हम कहेंगे कि हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स एक्स्ट्रा. ठीक है ना. फिर इसके बाद हम नए पीरियड में क्या, और यहाँ की इकोनॉमी क्या थी पैलियोलिथिक की? इट वाज सिंपली हंटिंग एंड गैदरिंग, नो डोमेस्टिकेशन, नो फार्मिंग, नथिंग, नो एग्रीकल्चर. इसके बाद जो हम सीधे जाना है मीजोलिथिक पे हम माइक्रोलिथ, छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे जो वेरियस ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में हमारे पास प्रेजेंट थे. माइक्रोलिथ्स. मीजोलिथिक period. Remember, the word microlith is associated with Mesolithic. यहाँ हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ हमने पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट करना शुरू हो गया. यहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. और कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स मिलती है. हमने फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की छोटी, अभी ब्रॉडर लेवल पे नहीं हुई थी, मगर प्रैक्टिस होना स्टार्ट की, क्योंकि हम एक ही जगह, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत सेडेंटरी होना शुरू हो गई, हमने सेटल करना शुरू किया. तो हमने डिफरेंट क्लाइमेट, जो भी डिफरेंट क्रॉप्स और डिफरेंट एनिमल्स, जब ग्रासलैंड, क्योंकि क्लाइमेट ठीक हो गया था तो ग्रासलैंड्स वजूद में आए. जब ग्रासलैंड्स वजूद में आए तो हमने पैटर्न्स देखा कि डियर, एंटीलोप, गोट्स, इनका क्या
हैबिटेट पैटर्न है, इनका क्या खाने का पैटर्न है। तो हमने भी उससे हमने सीखा और हमने डोमेस्टिकेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है यहाँ से मेसोलिथिक से, और स्टार्ट में और फार्मिंग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दी। और अब हम जब नियोलिथिक एज में आए, when we came to Neolithic age, it was different together. Man बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया था। उसने अब हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ अपनी मेन इकोनॉमी जो बनाई वो थी डोमेस्टिकेशन एंड एनिमल्स एंड फार्मिंग। डिफरेंट क्रॉप्स को फार्म करना स्टार्ट कर दिया, वीट को, बार्ली को, आगे आगे राइस को, कॉटन को, सिसेम को, लिंटल को, और बहुत सारे क्रॉप्स का फार्मिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने सीखा था। सीख कहाँ से शुरू हो गई थी? मेसोलिथिक एज से, और उस सीख को हमने आगे कहाँ पहुंचाया? नियोलिथिक एज में। और हमने ब्रॉडर लेवल पे, नियोलिथिक पे फार्मिंग कम्युनिटी बहुत ब्रॉडर हो गई, फार्मिंग हम प्रैक्टिस बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे चला गई, बहुत ही मतलब इट इंटेंसिफाइड द प्रोसेस। एंड सिमिलरली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वो भी एक वाइड प्रैक्टिस बन गई। और टूल्स, अगर यहाँ सिंपल स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया था, नियोलिथिक में पॉलिश्ड टूल्स नोन एज सेल्टिस का इस्तेमाल किया गया। Polished stone tools. We started using polished stone tools, which are known as celts as well. पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी हमें? ये 3 स्टोन एजेस हमें पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें हिस्ट्री में टाइमलाइन क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ से आए, हमने फिर क्या सीखा, और उस सीख को हमने आगे कहां तक पहुंचाया। पैलियोलिथिक में हम बहुत रहा था, क्रूड फॉर्म में सब कुछ था, हंटिंग एंड गैदरिंग वाज इन वोग, नो डोमेस्टिकेशन, नो फार्मिंग। तो फिर हमने जो क्लाइमेट इंक्रीज अच्छा होता गया, तो उसी वक्त फार्मिंग भी शुरू हो गई। हमने जाना कि इस क्रॉप की पैटर्न में, ग्रोथ पैटर्न में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हमने जाना इस एनिमल की डोमेस्टिकेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट। तो हम गए मेसोलिथिक एज पे। मेसोलिथिक एज पे हमने माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल किया, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड फार्मिंग थोड़ा बहुत लेवल पे हमने स्टार्ट किया। और जब हम 10,000 ईयर्स अगो पे गए तो हम पहुंचे नियोलिथिक स्टेज पे। नियोलिथिक एज पे हम बहुत ही एडवांस पे चले गए थे, और हमने डोमेस्टिकेशन को भी बहुत ही हाई लेवल पे स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स एज वेल एज फार्मिंग का भी बहुत ही। और ऑलमोस्ट हमारी लाइफ सिडेंटरी, इसमें इतनी सारी चेंजेस हुई नियोलिथिक पीरियड में कि इस सारे पीरियड को हम एज अ स्टडी करते हैं एज अ नियोलिथिक रेवोल्यूशन, बिकॉज इट रेवोल्यूशनरी, ये फेज हमारे में रेवोल्यूशनरी था। व्हेन आई से रेवोल्यूशनरी, बिकॉज देयर वर लार्ज स्केल चेंज। As for preliminary, you don't need to remember those changes, but you can remember that we can say that Gordon Childe, what he proposed the name for this phase as Neolithic Revolution, because large scale change आई थी। तो टाइमलाइन पे आपको देखना है कि पैलियोलिथिक पे कौन सा टूल इस्तेमाल किया था, कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी थी। मेसोलिथिक पे कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता, कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी थी। नियोलिथिक पे कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता और कौन सी इकोनॉमी। फिर जहां हमारा फोकस है, साइट्स। कभी कभार आपको पूछा जाता है कि टेढ़ा करके पूछेगा, वो बताएगा आपको मेहरगढ़ इज ए पैलियोलिथिक साइट्स वेयर व्हीट एंड बार्ली वर प्रैक्टिस्ड फर्स्ट टाइम। उसने आपको स्टेटमेंट दी। अगर आपने इन 3 पीरियड्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप मेहरगढ़ के बारे में आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहां से आपका क्वेश्चन इमीडिएटली स्ट्राइक होगा कि मेहरगढ़ तो सही, ये तो सच कह रहा है कि व्हीट एंड बार्ली तो वही सबसे पहले कल्टीवेट किए गए थे, मगर क्या वो पैलियोलिथिक साइट थी? नहीं, वो नियोलिथिक साइट थी। को यहाँ हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इट बिकम्स utmost necessary for us to remember some of the most important sites. And I'll be quoting few, you will have to add more yourself. And when we'll have a session on doubt clearing, we'll be discussing more sites there. Let me say something, let me quote some few sites here जो आपके लिए बहुत ही important exam के लिए।
Can you tell me something about this site, Burzoham? Yes. Akib is right. The site we're discussing is the Neolithic site. Why is it important? It is important because you are competing in JKCC prelims. It becomes an important site for your question. When I say the Neolithic site, we'll have to add all those features which are present in Neolithic site, but it's an exceptional site. Here no agriculture was practiced. Still at hunting and gathering, the only Neolithic site where hunting and gathering was still practiced and no agriculture was practiced. Exceptional. It was at hunting and gathering stage. Everybody knows about pit dwellings. Everybody knows about dog burials. But this, you may miss out this thing. That it was still at hunting and gathering stage and fishing stage. No agriculture was practiced. This makes it a very important Neolithic site. You may remember other points. That it lies to northeast of Srinagar. It is famous for urn burials. It's famous for pit dwellings. It's famous for dog burial. But the one thing that makes it important, we find here is that it was still at hunting and gathering stage. No agriculture was practiced. Another site which becomes important for you, that's Mehergarh. Because these are mentioned in your NCERT books. And NCERT is the main source from where questions can be directly asked. What do you know about Mehergarh? It's also a Neolithic site. Where first time wheat and barley were being cultivated. Wheat and barley were being cultivated. It's a statement from NCERT. Wheat and barley cultivation. Oh, rice. Wheat and यहीं पे फिर आगे जाके कॉटन की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई और यहीं से स्टी यहाँ की स्टी लाइफ कब देखी जा रही है अबाउट 7,000 years ago. और ये साइट कहाँ है? बलूचिस्तान. Near Bulan Pass. Near Bulan Pass. Question यहाँ से ये दे सकता है कि this was a site where wheat, barley and rice were cultivated for the first time. Rice तो कहीं पे जिक्र नहीं है. Wheat and barley का जिक्र है तो आपको वहाँ से पहचानना है क्योंकि वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकता है. आप बोलोगे वहां से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक साइड के, मगर नियोलिथिक साइड में हमने देखा कि वहां तक हमने तो अभी जनरल स्टेटमेंट ये बोला था कि एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस हो गया था जिसमें बहुत सारे क्रॉप्स का कल्टीवेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया. मगर जब हम एनसीईआरटी की कोर स्टडी बेसिक कंप्रेहेंसिव स्टडी करते हैं वहां सीधे बोल रहा है कि नहीं पहले जनाब मेहरगढ़ में व्हीट एंड बार्ली का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया और यहाँ से अगर किसी और क्रॉप का जिक्र किया गया तो मींस आपको ऑप्शन वहीं पे क्रॉस करना है. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. अनदर बिम्बेटका कहाँ है बिम्बेटका? इट इज प्रेजेंट इन एमपी मध्य प्रदेश. विंध्यास में प्रेजेंट है. विंध्या माउंटेन रेंज है एमपी में तो वहां ही प्रेजेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग. बहुत और भी जगह है मगर दिस इज इंपॉर्टेंट. कुरनूल है, उत्तराखंड में कुछ और जगह है, उत्तर प्रदेश में कुछ और जगह है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बेटका. No. It's the prehistoric site where focus would be on arts, on paintings. Prehistoric paintings. कब स्टार्ट हो गया था? अपर पैलियोलिथिक में. पेंटिंग्स तो अपर, मगर मेनली जब बहुत सारी पेंटिंग्स वजूद में आई थी वो किस स्टेज में थी? मेसोलिथिक.
स्टार्ट कब हो गया था? अपर पैलियोलिथिक। मेन जब बहुत सारी पेंटिंग्स वजूद में आई, कब की गई थी? मेसोलिथिक। और ये पेंटिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज दिस गिव्स अ वाइड पिक्चर, दिस गिव्स अस अ वाइड पिक्चर about various social, cultural, economic aspects of the prehistoric people. Archaeological तो हमें material remains देता है, मगर जो हमें cultural remains देता है, जो हमें बोल रहा है कि इनका social aspect क्या था, इनका cultural aspect क्या, इनका economic aspect क्या, इनका रहन सहन का तरीका क्या था, इनको गेम्स कौन सी अच्छी लगती थी, कौन से प्रैक्टिस, material remains तो archaeological से हमें तो material remains, मगर जो मिल रहे हैं आर्कियोलॉजी से, मगर जो मेन एस्पेक्ट है इनके सोशल कल्चर लाइफ के, वो इन्हीं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से मिले हैं। बहुत सारी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुरनूल में भी है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में है, और कई दूसरी जगह पे भी है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भीमबेटका। इनकी आप देखेंगे कि भीमबेटका इसी साल मेंस सवाल में पूछा गया था अबाउट दिस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। आप जब हम मेंस पे पूछेंगे तो हमें इसका डिटेल में पढ़ना है कि भीमबेटका में किस तरीके की पेंटिंग थी, कौन सा कलर इसमें इस्तेमाल किया गया था, उनसे क्यों थी इम्पोर्टेंट, उनसे हमें क्या पता चला। दिस विल स्टडी इन मेंस बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम हियर, वी हैव टू सिंपली हाईलाइट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। Another side for me which is very important is, because we barely go into that details, is Dajoli Harding. It is in Assam. आसाम में है साइट और नियोलिथिक साइट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका जिक्र भी एनसीईआरटी में किया गया है। क्या जिक्र गया है? यहाँ हमें मोर्टार और पेस्टल्स मिलते हैं। मोर्टार और एंड पेस्टल्स का जिक्र कहाँ हमें मिलते हैं? मोर्टार एंड पेस्टल्स कहाँ मिलते हैं? डजौली हार्डिंग, आसाम में है, नियोलिथिक साइट है और मोर्टार और पेस्टल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी साइट्स है, हजारों साइट्स है। हुंगसी एक साइट है, पैलियोलिथिक की, फैक्ट्री साइट थी कर्नाटक की, ऐसी बहुत सारी साइट्स है जिन पे हमें ऐसी नियोलिथिक में और खोल दो जिनके, मगर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है कि आपका ध्यान कहाँ, आपका ध्यान जाना चाहिए कि कुछ साइट जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्सेप्शनल साइट्स आती है। एक्सेप्शनल साइट्स आपके जनरल व्यू पॉइंट से कंट्राडिक्ट करती है, और जनरल व्यू पॉइंट अगर जनरली सवाल पूछा गया, आप तो जनरली आंसर दे सकते थे क्योंकि आपको पता होता है कि जनरल व्यू पॉइंट क्या है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक का। मगर जहाँ जहाँ एक्सेप्शन आएगी वहाँ वो साइट को आपको रिकॉग्नाइज करना है, और वहाँ ही जाके आपको फोकस बनाना है कि ये साइट के अगर इसके बारे में पूछा गया तो मैं क्या यहाँ आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सेप्शनल होता है। एक्सेप्शनल चीज़ें एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। चलो लेट्स गो फर्दर। जहाँ हमारा मेन क्रक्स था, जो हमने लिखा भी था कि हमारा लेक्चर सीरीज इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो गया, बट मुझे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा कि हमें कुछ और पहले डिस्कस करना ताकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें बन जाए हिस्टोरिकल टाइमलाइन की, कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ से वजूद आई। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से सारे लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, पता भी होती है बहुत सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मगर एक कम्प्रहेंसिव टाइमलाइन बनाने के लिए, एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन बनाने के लिए एक लीनियर एंड साइक्लिक मॉडल हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर ये चीज़ें आपको याद रहती है, वो आपके जहन में डालने के लिए तो हमने प्री हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया। हमने इससे पहले जिक्र किया था प्रोटो हिस्ट्री का और साथ ही में चालकोलिथिक एज का। प्रोटो हिस्ट्री हमने बोला कि वो पार्ट ऑफ द टाइमलाइन, हिस्टोरिकल टाइमलाइन का वो पार्ट है जहां में हमें रिटन रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, बट वी हैव बीन अनएबल टू डेसिफर देम। हमने उनको डेसिफर नहीं किया,
क्योंकि हमने उनको डिसिफर नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसके बारे में लिटरेरी के एविडेंस के तौर पर पता नहीं है कि क्या लिखा है, क्योंकि हमने उनसे जो भी लिखा है हमने जब डिसिफर नहीं किया तो हम जो भी चीज़ें थी हमें वो पता नहीं चली। अब कैसे इनके बारे में पता चली? इनके बारे में हमें पता चली मेनली थ्रू आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजी के फीचर्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे हमने कंस्ट्रक्ट किया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सिविलाइजेशंस के, और उनमें से एक सिविलाइजेशन जिसमें हमें आर्कियोलॉजी ने बहुत ज़्यादा मदद की वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड मोर प्रिसाइजली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। कब वजूद में आ गई? ये तो सीधे हमें पता है कि नियोलिथिक के बाद ही वजूद में आ गई, तो क्योंकि हमने बोला था पहले ही नियोलिथिक के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया? इट वाज चालकोलिथिक। व्हिच पीरियड स्टार्टेड आफ्टर द नियोलिथिक? इट वाज चालकोलिथिक, तो सम फीचर्स कंटिन्यू। When I say Chalcolithic, lithic means, everybody else among us knows lithic means stone. And what does this prefix chal here means? Chal here means copper, use of copper. Means हम बोल रहे हैं ये चालकोलिथिक एज की सिविलाइजेशन है। चालकोलिथिक मीन्स कॉपर प्लस स्टोन, उसी एज की सिविलाइजेशन। स्टोन का भी इस्तेमाल किया और कॉपर का भी इस्तेमाल किया होगा। कॉपर का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल बड़े ही स्टोन के साथ साथ बड़े ज़्यादा लेवल पे इसका यूज किया गया होगा। और सारे मेटल जो जो हम आगे पढ़े, और सारे मेटल्स का जिक्र किया होगा वो हम आगे देखेंगे। मगर हम ये क्या हम बोलेंगे, ये कौन से एज की सिविलाइजेशन थी? चालकोलिथिक एज की सिविलाइजेशन थी। क्या था इसका टाइम पीरियड? ये किस एज में मौजूद? इसका जो टाइम पीरियड है मेनली थ्रू एनसीईआरटी से जो हमें टाइम पीरियड मिलता है वो है 2750 to 1500 BC। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड को आप फ्रेमवर्क बनाएंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे, और जो जो हम आगे जाएंगे वैदिक सिविलाइजेशन, फिर लेटर वैदिक एरा में, फिर प्रीमोरियन में, फिर मौर्यन में, फिर पोस्ट मौर्यन में, ये आप जब 500 आगे आगे एक एक साल 10 साल 100 साल चलेंगे तो ये चीज़ें फिर आसान होती है समझना कि इस पीरियड की कैटेगराइजेशन को जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो आपकी हिस्ट्री को समझना और याद रखने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कहाँ थी ये सिविलाइजेशन प्रेजेंट? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सिविलाइजेशन कहाँ प्रेजेंट थी? Where was it present? Indian subcontinent. Why I am using the word subcontinent? Can anybody amongst you tell me why I am using the word subcontinent? Because it encompasses a larger area. because Indian subcontinent का जिक्र इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त इंडिया स्प्लिट नहीं हो गया। इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ एरिया और यहाँ से बांग्लादेश का कुछ एरिया इस इंडिया में ही प्रेजेंट थे, जो मेन इंडिया के साथ ही जुड़े थे। इसलिए ये साइट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वेरीड है। कुछ साइट्स पाकिस्तान में है, हालांकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है, इंडिया के मेनलैंड में, इंडिया एज वेल एज कहाँ है?
बांग्लादेश में भी है। यहाँ चूंकि बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट है, तो आप कितनों के फीचर्स याद रखेंगे? अफगानिस्तान, सॉरी we missed out Afghanistan, which is very important. किन किन साइट्स का आप याद रखेंगे? ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर it will become very difficult for you to remember each and every aspect of each and every aspect of every site. तो ये तो बहुत lengthy process जाएगा। Mainly जब हम इसका स्प्रेड देखेंगे, हम मेनली कुछ ही साइट्स पे फोकस करेंगे। सपोज हम देखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन है इसकी, हम देखेंगे साउदर्न मोस्ट साइट कौन है, हम देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन है, और फिर वेस्टर्न मोस्ट कौन है, और फिर जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उनका हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन है नॉर्दर्न मोस्ट साइट्स? जम्मू में ही प्रेजेंट है, अखनूर रीजन में मांडा। क्या है उस साइट का नाम? नॉर्दर्न मोस्ट साइट। यहाँ अगर हमें मांडा करेंगे एम से रिप्रेजेंट, तो साउदर्न मोस्ट जाएंगे, कौन सी है साउदर्न मोस्ट साइट? दियामाबाद। कहाँ है वो? महाराष्ट्र। और ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? आलमगीरपुर, यूपी में। आप देखेंगे अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे, एक ट्रायंगल जैसा बनता है। और वेस्टर्न, इसमें बहुत सारी और भी साइड्स है, मगर हम मेनली जो स्प्रेड देखेंगे इसका ट्रायंगुलर स्प्रेड है, तो इसलिए मैंने 3 ही साइड्स पे फोकस किया, ट्रायंगुलर स्प्रेड को। पहला हमें जो पॉइंट यहां से मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रायंगुलर स्प्रेड किस किस, अब इसका नाम जब हम देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसका नाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम साइट्स है वो इंडस रिवर पे है, और जो हम मिस करते हैं, क्या खाली इंडस रिवर पे ही है? नो, सरस्वती, which is important, though it's not existent at present, but it's important. Many of the sites are present in Saraswati region. That is why we should name this civilization precisely as Indus Saraswati civilization. Similarly, we have a site Diamabad. Diamabad is present on the tributary of Godavari river, Pakra. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि all the sites of the Harappan civilization are present of Indus river. आप उसी सेंटेंस को उसी वक्त ना कर देंगे, नो कहेंगे, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। They are not present. Yes, mainly they are present on Indus river, but not exclusively. Exclusively नहीं। तो यहाँ जाके जब हमने एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दी कि मोस्ट ऑफ द रिवर साइट्स इंडस रिवर, तो हमने उसको पहचाना है कि ये सच है कि नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को पहचाना है कि अगर ये सच है तो पूरा हमें पता होना चाहिए कि ये सच ही स्टेटमेंट है। अदरवाइज थोड़ा सा भी डाउट करके हमें उसको क्रॉस करना चाहिए। तो जब हमने बोला कि ये उस फेज में मैक्सिमम ऑफ द साइट्स कहाँ लोग प्रेफर करना पसंद करते थे, रिवर वैलीज में, क्योंकि रिवर वैलीज में उनके लिए आसान था, एक तो ट्रांसपोर्टेशन इजी था, कैरेज का ट्रांसपोर्टेशन इजी था, फूड सेटलमेंट का पैटर्न इजी था, और फूड अवेलेबिलिटी भी इजी थी। तो मैक्सिमम ऑफ साइट्स आप देखोगे डिफरेंट रिवर्स। मैं कुछ का नाम लूंगा, कुछ आप खुद नाम याद रखेंगे। हड़प्पा किस रिवर पे थी?
और कहाँ थी वो? बराबर। हड़प्पा पाकिस्तान में। और किस रिवर पे? रावी पे। इंडस के किस ट्रिब्यूटरी पे? रावी पे। ये आपको कुछ खुद साइड याद रखने, मैं कुछ इंपॉर्टेंट का बताऊं। ऐसे ही मोहनजोदड़ो कहाँ थी? पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान की साइड, इंपॉर्टेंट साइड। और किस रिवर पे? सिंध पे। सिंध और इंडस। इंडस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइड और, सुद का जंदूर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। किस रिवर पे? दश्त पे। रिवर दश्त, इंपॉर्टेंट। लोथल, इंपॉर्टेंट साइट इन इंडिया। किस रिवर पे? रिवर बोगवा। कालीबंगन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट। किस रिवर पे? रिवर गागरा। बुक्स पे, जो भी जनरल स्टडीज बुक उस पे लिखा होता, मगर मैं आपको याद ध्यान नहीं कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू कि ये रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंट साइट्स को पूछ सकता है वो यहाँ से, फिर बोलेगा मैच करो कि किस किस रिवर पे है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। आपकी डिस्कवरी, किसने डिस्कवरी की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल के स्टडीज में हो सकती है, मगर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन में डिस्कवरी किसने की वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर रिवर का पहचानना, रिवर किस रिवर पे है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डिफरेंट साइट्स आप देखेंगे कि किस किस रिवर पे थी। आपसे ये सवाल किया जाएगा कल जब हम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, मैं वहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाऊंगा कि कौन सी साइट किस रिवर पे थी। और अगर हम डिफरेंट इन कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ दो तरीके से इस सिविलाइजेशन को पढ़ सकते हैं। एक तो पढ़ सकते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। यहाँ से हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें ये पता चलेगा कि इसमें मेन फीचर्स इस सिविलाइजेशन के क्या थे, ब्रॉड एस्पेक्ट्स पे। फिर कहीं कहीं जगह या तो एक्सेप्शनल फीचर्स है या कहीं पे कुछ जगह है इतनी इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमें बहुत ही अच्छी और यूनिक एविडेंसेस मिली। तो उन यूनिक एविडेंसेस और जनरल फीचर्स को क्लब करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे और हमें उनमें से कौन से आंसर्स देने हैं। तो हम पहले जनरल फीचर्स करेंगे, उसके बाद यूनिक फीचर्स बनेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्यों ये सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों थी, इसमें क्या इससे हमने क्या सीखा, इससे हमें सीखने को क्या मिला, ये क्यों हमारे अर्बन कल्चर की इतनी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, क्या इसके कंटेम्प्रेरी में कोई और सिविलाइजेशन थी। हाँ, हम डिफरेंट सवाल खुद को पूछेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर हम वहां से लेना शुरू करेंगे। जो हमें डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका होल्ड उस पर ज़्यादा बिल्ड होना स्टार्ट होगा। विल बी एबल टू डील इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। सो let's see what's time first, then we'll see whether we should proceed or not. 3:15. Shall we stop here today, or we shall continue tomorrow, or we shall continue? We'll continue tomorrow. We'll continue tomorrow. So, since students are telling that we shall continue from here tomorrow only, so let's see. Tomorrow we'll be studying. Let me make clear to you. Tomorrow we'll be studying general features of this Harappan civilization or Indus-Saraswati civilization. Then we'll go to unique aspects of the civilization. Then we'll say what made this civilization, how did it gain prosperity, and what led to its end. Teacher. And similar general aspects में ही हम इसका सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। अगर वहाँ हमें कुछ एक्सेप्शनल एविडेंसेस मिले या कुछ क्वेश्चंस के लायक हमें डिफरेंट एविडेंसेस मिले तो हम वो उसी वक्त पढ़ेंगे। और जो भी
इनमें फीचर्स, एक्सेप्शनल फीचर्स की बात की हो गई होगी कहीं पे। सब लोथल के एक्सेप्शनल फीचर क्या है, धोलावीरा का एक्सेप्शनल फीचर क्या है, ऐसे ही छानूदोरा को एक्सेप्शनल फीचर क्या है, उसी दौरान। क्योंकि क्वेश्चन जब जो एक स्टेप एक क्वेश्चन, एक स्टेप एक क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन स्टेप वाइज पोज करना स्टार्ट करेंगे और आपकी स्टडी इफेक्टिव बन जाती है। जब आपकी स्टडी उसी से आप पहचान सकते हो कि मुझे कोई टॉपिक तो नहीं रह गया। अगर प्लेन स्टडी की आपकी, आप तो सारा पढ़ोगे मगर उसमें बहुत कुछ रह जाएगा। आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैंने ये कैसे रह गया। तो बेहतर है कि हम क्वेश्चन यहाँ से पोज करेंगे खुद को और यहाँ से बताएंगे आंसर एक जनरल क्या, फिर वहीं देखेंगे क्या एक्सेप्शन है, उसी में फिर देखेंगे कि अगर एक्सेप्शन है तो क्या है, तो वही पढ़ेंगे। तो हम इस पहला लेक्चर था, स्लो गए थोड़ा, इंशाल्लाह पेस गेन करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, ताकि आप भी हमारी लेक्चर्स को फर्दर अंडरस्टैंड करें। इसी तरह 2:30 बजे ऑनलाइन लेक्चर होगा, तो इंशाल्लाह ताला वी शैल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।